اہم خبر ہے، الیکشن کمیشن نے کراچی میں 23 اکتوبر کو ہونے والے بلدیاتی الیکشنز ملتوی کر دیے ہیں۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کی نئی تاریخ سے متعلق فیصلہ اب 15 روز بعد کیا جائے گا۔ اس فیصلے کے بارے میں مزید اپڈیٹس لیں گے ہمارے نمائندے خورشید رحمانی ہمارے ساتھ ہیں۔ خورشید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے 23 اکتوبر کو ہونے والے بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیے ہیں۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کی نئی تاریخوں سے متعلق فیصلہ 15 روز بعد کیا جائے گا۔ 15 دن بعد ہونے والے اجلاس میں بلدیاتی الیکشن کی نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ آج جب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ثانیہ کار صاحب پر جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے، اس میں بھی آج صحافیوں کے سوال کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ کے حامل نہیں ہیں فی الحال، کیونکہ سندھ میں سیلابی صورتحال ہے اور ہماری جو ٹیم ہے وہ سیلابی صورتحال کے اندر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، تو سندھ حکومت جو ہے وہ ابھی جو ہے بلدیاتی الیکشن نہیں کروانا چاہتی۔ جی ٹھیک ہے خورشید رحمانی، جماعت اسلامی کی جانب سے ابھی اس فیصلے کے بعد کوئی موقف سامنے آیا ہے؟ کیونکہ جماعت اسلامی بضد تھی اور ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ حالات تبھی بہتر ہو سکتے ہیں اگر ایڈمنسٹریٹر لیول کے کراچی کے بات کی جائے جب بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ دیکھیں، جماعت اسلامی کی جانب سے ابھی تک تو کوئی موقف سامنے نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ابھی چند منٹ پہلے ہی آیا ہے، تو اب یہ تمام جو ریئیکشنز ہیں، تمام تحفظات ہیں جو سیاسی جماعتوں کی طرف سے آنے ہیں، وہ کچھ دیر بعد آنا شروع ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے مزید کیا وجوہات بتائی گئی ہیں؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے وجوہات تو کوئی بتائی نہیں گئی ہیں، لیکن یہ بتایا گیا کہ 15 دن بعد نئی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا۔ خورشید رحمانی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کراچی میں 23 اکتوبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔ اہم خبر ہے، کراچی میں بلدیاتی الیکشن کی نئی تاریخ سے متعلق اب کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ 15 روز بعد کیا جائے گا۔ سندھ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں، آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے جب میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی تو ان کی جانب سے بھی یہ موقف سامنے آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی سیلابی صورتحال سے ہم نمٹ رہے ہیں، چیلنجز درپیش ہیں، اس کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات کو لے کر کے ہماری تیاری نہیں ہے۔ ثاقب سعید ہمارے نمائندے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اس فیصلے پر ثاقب سے بھی ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ ثاقب، اپڈیٹ کیجیے گا، الیکشن کمیشن نے کراچی میں 23 اکتوبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے ہیں، کیا وجوہات کیا سامنے آئی ہیں الیکشن کمیشن نے جس بنا پر یہ بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کراچی کے جو بلدیاتی انتخابات ہونے تھے 23 اکتوبر کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں آج اہم اجلاس ہوا اور متعلقہ جو ادارے ہیں ان کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس چونکہ یہ اختیار تھا کہ وہ اداروں سے کہے کہ وہ سیکورٹی وہاں پہ فراہم کریں، تاہم جو وزارت داخلہ نے جو ان کو بریفنگ دی ہے، جو لکھا تحریری طور پر لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ پاک آرمی اور رینجر پولیس کی نفری کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے، تاہم کراچی میں بلدیاتی انتخابات کو یقینی بنایا جائے۔ اس پر وزارت داخلہ نے تحریری طور پر مطلع کیا ہے کہ پولیس کی نفری کی کمی کے باعث پاک آرمی اور رینجر جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنوں پر بطور اسٹیٹک ڈیوٹی لیکن ایک جگہ پہ وہ ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتی، البتہ پہلے کی طرح یہ فورسز جو ہیں وہ QRF کے طور پر مہیا ہوں گے، جس پر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ غور و خوض کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مذکورہ حالات میں الیکشن کمیشن کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات فی الحال ملتوی کر دیے جائیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کا پرامن انعقاد اور ووٹروں کا تحفظ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی اولین ترجیح ہے۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کہ 15 دن کے بعد الیکشن کمیشن کا دوبارہ اجلاس ہوگا، جس میں صوبائی حکومت اور دیگر امن و امان قائم کرنے والے اداروں سے فیڈ بیک لیا جائے گا تاکہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا جلد از جلد اور پرامن انعقاد کیا جا سکے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ دوبارہ ایک نئے تاریخ کا فیصلہ کرے گا۔ میٹنگ میں جو ضلع کرم کا حلقہ NA 45 ہے اس کے بارے میں بھی بات ہوئی اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ مورخہ 30 اکتوبر کو NA کرم میں انتخابات ہوں گے۔ اس ضمن میں تمام تر جو ادارے ہیں ان کو انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے ثاقب، یہ بھی بتائے گا وفاق سے جو سیکیورٹی مانگی گئی تھی بلدیاتی انتخابات کو لے کر کے، اس بارے میں کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو وزارت داخلہ کا تحریری جو جواب تھا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ تحریری طور پر لکھا گیا ہے کہ وزارت داخلہ
दीगर अमन अमान कायम करने वाले इदारों बशमूल पाक आर्मी और रेंजर की फराहमी यकीनी बनाए ताकि पुलिस की नफरी की जो कमी है उसको पूरा किया जाए और कराची के बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। इस पर वजारत दाखिला ने तहरीरी तौर पर मुतला किया है कि पुलिस की नफरी की कमी के पेश नज़र पाक आर्मी और रेंजर्स पोलिंग स्टेशनों पर बतौर स्टैटिक ड्यूटी सरंजाम नहीं दे सकती, अलबत्ता पहले की तरह ये फोर्सेज QRF के पर मुहैया की जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर ये इदारे जो हैं वो बैक एंड पे रहेंगे, ताहम स्टैटिक ड्यूटी वो सरंजाम नहीं दे सकेंगे क्योंकि तमाम तर इदारे जो हैं वो सिंध में जो सैलाब आया हुआ है वहाँ पर इस वक्त मसरूफ़ हैं। जी साकिब, नई तारीख कब तक दिए जाने का इम्कान है इलेक्शन कमीशन की जानिब से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि 15 दिन के बाद दोबारा के इजलास होगा इलेक्शन कमीशन के अंदर और तमाम तर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो भी इलेक्शन कमीशन में मीटिंग करेंगे और उसके बाद हालात को देखा जाएगा कि आया ये जो सिक्योरिटी के इदारे हैं इसमें, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तमाम तर जो पोलिंग स्टेशन हैं वो या तो हसास हैं या इंतहाई हसास हैं, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ये कि ये इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी किए जाएँ और ये फैसला किया गया है। ताम 15 दिन के बाद ये जो ठीक है, आप हमारे साथ रहेगा। साकिब सईद इस वक्त PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जमान साहब। खुर्रम शेर जमान साहब, अभी इलेक्शन कमीशन ने कराची में 23 अक्टूबर को होने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात थे उनको मुलतवी कर दिया और ये भी कहा है कि 15 रोज बाद हम डिसाइड करेंगे कि कब ये बल्दियाती इंतखाबात होंगे। क्या कहेंगे, आपकी जमात की जानिब से क्या आप कमेंट करना चाहते हैं? बुज़दिल जो है वो भाग गए, खौफज़दा जो है वो भाग गए, जिनको ये पता था कि इनकी सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठुकने जा रहा है इमरान खान की तरफ से कराची में, वो भाग गए। जो मजबूर कौमी मूवमेंट थी वो भी भाग गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो पता ही था कि इन्होंने जो कराची शहर का हशर किया पिछले 15 साल में, लोगों ने जो है इनको मुस्तरद करना है, तो ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये करने जा रहे हैं और इन्होंने यही करना था। इनसे और क्या तवक्को कर सकते हैं? एक ऐसी सियासी जमात जो कि जिसका सलूक हमेशा कराची शहर के साथ सौतेली माँ वाला सलूक रहा हो, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं? ये शहर तो बस दूध देने वाली गायें हैं, इससे जितना निकाल सकते हैं निकालें, इसको देना क्या आपने? ये सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक सूबे सिंध में जो है ये हुकूमत में रहेगी, आप समझ लें इस सूबे की बर्बादी लिखी हुई है। ये मोइंजोदड़ो में तब्दील कर देंगे आपके शहर को, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहीं पे आप लिख लें, ये स्टोन एज की तरफ लेके जाएंगे। खुर्रम शेर जमान साहब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब तो कहते हैं ना कि अभी सैलाबी सूरत हाल है, हमें चैलेंजेस दरपेश हैं, हमें सूरत हाल को ओवरकम करना है, कंट्रोल करना है, लोगों को रिलीफ देना है, उसके बाद फिर बल्दियाती इंतखाबात की तरफ आएंगे। उन्होंने इनकार तो नहीं किया। बकवास करते हैं, झूठे हैं। इन्होंने इस्लामाबाद को पुलिस फराहम की है ताकि तहरीक इंसाफ के जो पुरअमन एहतजाज है उसके ऊपर शेलिंग कर सकें, उसके ऊपर तशद्दुद कर सकें। उधर है इनको देने के लिए पुलिस, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए, लोगों की बुनियादी सहूलियात उनको फराहम करने के लिए, उनको फंडामेंटल राइट्स देने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए इनके पास पुलिस नहीं है। ये सब तमाशा ड्रामेबाजी है और ये अपनी जो मजबूर कौमी मूवमेंट इनके इत्तेहादी हैं उनको भी खुश करने के लिए, अपने मामलात को भी तय करने के लिए सब किया गया है। ये चाहते हैं। ठीक है खुर्रम शेर जमान साहब, एंड में मुख्तसर साहब का कमेंट चाहूंगी। सिकंदर सुल्तान राजा साहब से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपकी जमात? सिकंदर राजा साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने में। आपके सामने हैं जो कराची के अंदर मलीर के अंदर परसों इलेक्शन हुआ है, हमारी बेशुमार ऐसी वीडियोस मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है। जो हसास पुलिस स्टेशन थे वहां पे कैमरे लगे हुए नहीं थे, वहां पे अमला जो था वो तमाशा देख रहा था बैठकर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर जो हैं वो ठप्पे मार रहे थे। दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे जो उसके अलावा पूरे इलेक्शन में उसके अंदर इनका क्या किरदार रहा है। मतलब जिस जगह इमरान खान का नाम लिखा हुआ है उसके नीचे इमरान खान न्याजी लिखा, उसके नीचे इमरान खान के नाम का कैंडिडेट का नाम लिखना और बल्ले के जैसे जो है ना वो निशान लगाना, क्या ये सब चीजें हमें नजर नहीं आती? क्या हो रहा क्या है? एक तरफ जो है वो फॉरेन फंडिंग का हम पे इल्जामात लगाए जाते हैं और बाकी सियासी जमातों से नहीं पूछते कि वो भी बताएं कि उन्होंने फंड्स कहाँ से इकट्ठे किए। सो ये इनका जो तरीका कार है उसके ऊपर बिल्कुल हमें एतराज है और हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर ये जो है मुस्ताफी हों और घर जाएं ताकि देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्शन।
कोई ऐसी ठीक है, सियासी ये जमात बलदियाती इंतखाबात आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है, इस पर वक्त का तकाजा भी है। बहुत शुक्रिया। खुर्रम शेर ज़मान साहब PTI रहनुमा हमारे साथ है। खुर्शीद रहमानी आपका भी शुक्रिया। साकिब सईद भी हमें तमाम तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी एटमी असासे मुकम्मल महफूज हैं, पाक फौज का इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज हर खतरे से मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाएगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका को बताया गया पाकिस्तान ने अपने जौहरी सलामती के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान के जौहरी सलामती के मेयारात बैनुल-अक़वामी बेहतरीन तरीक़ाकार पर मबनी है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा पाकिस्तान जौहरी हथियारों की हामिल जिम्मेदार एटमी ताकत है। शुरका ने मजबूत जौहरी कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम स्ट्रेटजिक असासों की सलामती पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इजलास में मौजूदा दाखिली बैरूनी सलामती की सूरत हाल, फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जामे जायजा लिया गया। फोरम को सैलाब से मुतासरा इलाकों बिलखसूस सिंध और बलोचिस्तान की सूरत हाल से भी आगाह किया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान के एटमी हथियारों की सिक्योरिटी पर एतमाद का इजहार कर दिया है। अमेरिकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है अमेरिका को एटमी हथियारों को महफूज रखने की पाकिस्तान की काबिलियत पर उन्हें एतमाद है। पाकिस्तान के जौहरी असासों से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान। अमरीकी दफ्तर खारजा ने सदर बाइडेन के बयान की नफी कर दी। हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान वेडन पटेल ने कहा अमरीका को पाकिस्तान की अपने जौहरी असासों की हिफाजत की सलाहियत और अज़म पर एतमाद है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात से मुतालिक तर्जुमान बोले अमरीका ने एक महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को हमेशा अपने मफाद में देखा है। इस ताल्लुक को अमरीका जरूरी समझता है और इस पर पूरी लगन से काम जारी रखेंगे। इससे पहले 13 अक्टूबर को एक तकरीब में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को बेकायदा और पाकिस्तान को खतरनाक तरीन कौम करार दिया था। सदर बाइडेन के बयान पर पाकिस्तान ने अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। इमरान खान ने 25,000 माहाना डॉलर पर अमेरिका में एक लॉबिंग कंपनी हायर की है। इमरान खान जिस अमेरिकी शख्स को पैसे दे रहे हैं इसका नाम डेविड फेंटन है। डेविड फेंटन को अमेरिका में बाबाए एंटी न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं अमेरिका का मकसद पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को किसी तरह से ख़त्म कराना है। इमरान खान फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस के मुल्जिमान शाहरुख जतोई और दीगर को बरी कर दिया। वकील लतीफ खोसा कहते हैं कि फरीकैन का पहले ही राजीनामा हो चुका है, मुल्जिमान का दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर को सजाए मौत सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने यह फैसला तब्दील करते हुए मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आइए इस बारे में ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस के मुल्जिम शाहरुख जतोई को बरी कर दिया, दीगर मुल्जिमान को भी रिहा करने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर को सजाए मौत सुनाई थी, जबकि नवाब सज्जाद गुलाम मुर्तजा को उम्र कैद सुनाई गई थी। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला तब्दील करते हुए चारों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान के वकील लतीफ खोसा ने अदालत को बताया मुल्जिमान का दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था। फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू में लतीफ खोसा ने कहा जिस वक्त वाकया हुआ शाहरुख जतोई 18 साल का बच्चा था। जुर्म साबित होने से पहले दागदार नहीं करना चाहिए। किसी को जुर्म के साबित होने से पहले, फैसले से पहले आप उसको जो है उसका ट्रायल कर देते हैं और उसको दागदार कर देते हैं, उसको बदनाम कर देते हैं। लतीफ खोसा ने मजीद कहा दोनों खानदानों को अब सुलह कर लेनी चाहिए। ये रिपोर्ट आपने देखी और अभी आपको बताएं कि 10 बरस बीत जाने के बाद भी शाहजेब को इंसाफ नहीं मिल सका। अदालत ने मरकजी मुल्जिम शाहरुख जतोई समेत केस में नामजद तमाम मुल्जिमों को बरी कर दिया। शाहजेब के कत्ल होने से मुल्जिमों की बरियत तक केस में कौन कौन से मोड़ आए, आइए जानते हैं जुनेद शाह की इस रिपोर्ट में। वकील करें किससे मुंसिफी चाहें। 7 साल बाद शाहजेब कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम शाहरुख जतोई समेत तमाम मुल्जिमों को बरी कर दिया गया। 24 दिसंबर 2012 को शाहजेब नामी नौजवान को मामूली तल्ख कलामी पर डिफेंस कराची में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। जून 2013 में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मरकजी मुल्जिम शाहरुख जतोई समेत 2 मुल्जिमों को सजाए मौत जबकि 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई। नवंबर 2013 में सिंध हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इंसदाद दहशतगर्दी की दफात खत्म करके मातहत अदालत को मुकदमे की दोबारा समाअत की हिदायत की। 2017 में शाहजेब के वालिदैन ने कसास और दियत के कानून के तहत सुलहनामे के बाद शाहरुख जतोई को माफ कर दिया, जिसके बाद उसे रिहा कर दिया गया।
ताहम फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत के बाद सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में मुलविस चारों मुजरिमों को दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद उन्हें दोबारा हिरासत में लिया गया था। जुनेद शाह, नियो न्यूज, कराची। एक और अहम केस, इस्लामाबाद में बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस के तीनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा हो गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद से मोहम्मद उवैस की रिपोर्ट। बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस का फैसला आ गया। इस्लामाबाद के सेशन जज अता रब्बानी ने मुल्जिमान राजा अरशद, नोमान खोखर और हाशिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। केस का ट्रायल 6 साल चला। मरकजी मुल्जिम राजा अरशद को अदालत में पेश किया गया। अदालत में मुल्जिमान की हाजिरी लगवाकर इन्हें बख्शी खाने वापस भेज दिया गया। 2016 में 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब बैरिस्टर फहद मलिक को थाना शालीमार की हदूद F10 में कत्ल किया गया था। इस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। केस की समाअत के दौरान 4 चश्मदीद गवाहों ने तीनों मुल्जिमान के खिलाफ बयान दिया। ट्रांजिक रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल में इस्तेमाल की गई क्लाशनकोफें और जाए वकुआ से मिलने वाले खोल भी मैच कर गए। मरकजी मुल्जिम राजा अरशद को मुल्क से फरार की कोशिश में तुर्खम बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अवैस, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। सर्दी अभी आई नहीं और गैस की फ्राहमी बंद हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस लोड शेडिंग ने लोगों को सख्त अजियत में मुब्तला कर दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान लोगों के लिए बना वबाले जान। खाने पीने के औकात में गैस न मिलने के बाद शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में शहरियों ने हुकूमत से गैस के बिलों में कमी, गैस की बिला तातुल फ्राहमी का मुतालबा कर दिया। बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल जाते हैं, हम बहुत परेशान हैं। अब सर्दियों में भी नहीं आ रही, सिलेंडर इतना महंगा है, हम खाएं या गैस भरवाएं। गैस की वजह से हम बहुत जलील हो रहे हैं, बहुत तंग हो रहे हैं। गैस आए ना आए बिल आ रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो रही है हमें। पेशावर में भी 8 घंटे गैस की बंदिश ने आवाम की जिंदगी अजाब बना दी। शहरी कहते हैं हुक्मरानों को उनकी कोई फिक्र नहीं। गर्मी में गैस नहीं थी, अभी तो सर्दी आ गई है। अभी हमारे चूल्हे मुकम्मल तौर पे ठंडे होंगे। 24 घंटे में 18-19 घंटे लोड शेडिंग है, तकरीबन 2-3 घंटे गैस है। फैसलाबाद और मुल्तान के मुतादिद इलाकों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। शहरी कहते हैं कि गैस के बिल तो डबल आ रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग कम नहीं हो रही। मॉर्निंग में चले जाती है तो तकरीबन 2 से 3 घंटे नहीं आती, और उसके बाद रात को जब खाने का टाइम होता है तब भी गैस नहीं होती। LPG है वो भी नहीं मिल रही, मिलती है तो फिर महंगे दामों में मिल रही है, इसलिए हुकूमत को चाहिए इस पर गौर करें। मौसम सरमा के आगाज से पहले ही मुल्क के तूलो अर्ज में गैस के बहरान ने सर उठा लिया है। शहरी परेशान है कि सख्त सर्दी में भी यही हाल रहा तो क्या करेंगे। और अभी खबर है कराची से। कराची में मनमानी कीमतों में दूध की फरोख्त जारी है। दूध की कीमत में अचानक 20 रुपए के इजाफे से शहरी फट पड़े हैं। कहते हैं कि किसी अपनी फरियाद सुनाएं। इस सिलसिले में कमिश्नर कराची जब राब्ता किया गया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने रिवायती जुमला मिलाकर साहिब मीटिंग में गए हुए हैं यही कहा गया, और मीडिया को जवाब देने से कहा गया कि वो कासिर हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद गफ्फार से। जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कमिश्नर कराची के ऑफिस के बिल्कुल सामने, और हम उनसे जानने आए थे कि वजह क्या है कि कराची के जितने भी दूध फरोश हैं वो 200 रुपये फ़ी लीटर दूध जो है क्यों फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि सरकारी जो नर्ख हैं वो 120 रुपये फ़ी लीटर हैं। लेकिन कमिश्नर कराची हस्ब मामूल अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे। उनके जो तर्जुमान हैं उनसे भी हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो चीफ सेक्रेटरी के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में मसरूफ़ है, जिसकी वजह से वो आपको दस्तयाब नहीं होंगे। नियो न्यूज़ ने तमाम मामला जानने की कोशिश की थी, और वो इस वक्त हमारी पूरी टीम जो है यहाँ मौजूद है कमिश्नर कराची के बिल्कुल ऑफिस के सामने। हर चीज़ महंगी है, तो दूध भी महंगा हो गया है, तो लोग वाकई बहुत ज़्यादा परेशान है। और जब हमारी लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो सरकार है उनको ये सोचना चाहिए कि पहले इतनी महंगाई है, तो जो दूध है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मामूल के अंदर, तो उसके कम अज़ कम उसके ऊपर तो इतनी कीमत ना हो, और जो सरकारी नर्ख है उसी के ऊपर दूध को फ़रोख्त किया जाना चाहिए। अहम खबर है लाल हवेली खाली कराने से मुताल्लिक नोटिस का मामला। लाल हवेली खाली कराने का नोटिस 2 हफ्ते तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। अदालत की जानिब से कहा गया है ये केस ज़ेरे समाअत है, नोटिस का इजरा दुरुस्त नहीं। अदालत ने डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ इमलाक को नोटिस जारी करके तलब कर लिया है। इस बारे में मजीद डिटेल्स खालिद चौधरी से लेते हैं। खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मतरूका वक्फ अमलाक की जानिब से कल जो है लाल हवेली की बेदखली के हवाले से महफूज फैसला सुनाया गया था, जिसके बाद जो है
शेख रशीद के भतीजे की जानिब से अदालत में जो है दरख्वास्त दी गई थी कि इस फैसले को जो है रोका जाए, जिसकी बिना पर जो है आज दोबारा केस की समाअत हुई तो अदालत ने अब से जो है कुछ देर पहले ये फैसला महफूज किया था, जिसे सुना दिया गया और 15 रोज के लिए जो है जो मतरूका वक्त इमलाक है उसको रोक दिया गया है कि वो इस हवाले से बेदखली के इशू पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा और 15 रोज बाद इसके हवाले से फैसला किया जाएगा। और इस हवाले से महफूज फैसला अब से कुछ देर मिनट पहले ही सुनाया गया है और इस वक्त जो है वकला यहाँ से रवाना हो चुके हैं, जबकि शेख रशीद को भी इस फैसले के हवाले से उनके साथियों ने फोन पर बता दिया है और ये फैसला दिया है सेशन जज खुर्शीद आलम भट्टी ने। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद आपका। और उधर रुझान पे इंतजामिया सैलाब मुतासरीन को दोबारा पूछने तक न आई। मिशन एहसार की टीम रुझान में सैलाब मुतासरीन की मदद को पहुंच समेत दीगर सामान तकसीम किया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली असदुल्ला से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रुझान में मौजूद हूँ जहाँ पर रोदको की सैलाबी रेलों ने जो है पूरे रुझान को अपनी लपेट में ले लिया था और हर तरफ तबाही मचा दी गई थी। सुपीरियर फाउंडेशन की जानिब से उनके जो नौजवान हैं उन्होंने जो हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन अब तक जो है उन्होंने हेल्थ कैंप लगाए हैं और जो जगह हैं वहाँ पर उन्होंने विजिट किया है, उन एरियाज का विजिट किया है, इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। जी बताइएगा, आप क्या महसूस कर रहे हो, आगे के लिए क्या हाल है मतलब? जी जनाब, मैं बताता चलूँ कि पूरी रात जो है वो लाहौर से ये टीमें सफ़र करते हुए निकली हैं। आज सुबह रुझान पहुंची हैं और रुझान में आते साथ ही सुबह हम लोगों ने पहले डिस्ट्रीब्यूशन की है तकरीबन कोई 300 लोगों की। फिर उसके बाद हम लोगों ने मेडिकल कैंप किया है जिसमें तकरीबन हम लोगों ने 2000 के करीब लोगों की OPD की है और उनको फ्री में मेडिसिन दी हैं। और अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं जिनको राशन प्रोवाइड किया जा रहा है और यही सिलसिलाकार जो है वो अगले मज़ीद 2 से 3 दिन जो है वो चलता रहेगा। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जहाँ पे गवर्नमेंट और वो सारे इदारे अपनी अपनी जगह पे मौजूद थे, वहीं पे एप्सप और पॉमी के प्लेटफॉर्म से जो मिशन एहसार स्टार्ट किया गया था उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब के मुताबिक आज सुबह जो है उन्होंने 300 से तो ज़ायद जो है ख़ानदानों में राशन तकसीम किया था। उसके बाद फिर जो है मेडिकल कैंप लगाया था। मेडिकल कैंप में भी 2000 से ज़ायद जो है ख़ानदानों को जो है उन्होंने यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट किया और मजीद भी उनका यह कहना था कि हमारी जानिब से ये कोशिशें जारी रहेंगी ताकि हम सैलाब मुतासरीन तक ये सामान पहुँचाते रहें। वेलकम बैक। सवात में मौसम खिज़ां ने वादी का हुस्न मजीद निखार दिया है। दरख्तों से गिरते रंग बिरंगे पत्ते हर किसी को अपनी जानिब माइल कर रहे हैं। हर तरफ ऐसे खूबसूरत मनाजिर हैं कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। हारून सिराज की रिपोर्ट। बदलते मौसम के रंग पतझड़ के संग हरियाली छुप गई, जर्दी छा गई। मौसम खिज़ां के जलवे बिखेरते ही वादी सवात का मंजर ही बदल गया। जमीन पर गिरे रंग बिरंगे पत्ते कुदरती मुसव्वरी का पता दे रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं, पत्तों की सरसराहट और दरख्तों की ओट से फूटती किरणें दिल फरेब मनाजिर को जो देखे देखता ही रह जाए। ठंडी ठंडी छांव और ये नज़ारे मौसम सरमा की आमद की नवीद सुना रहे हैं। इस पुरसोज फिजा का एहसास तबीयत पर ऐसा सहर तारी करता है जिससे निकलने का जी नहीं चाहता। हारून सिराज, नियो न्यूज़, सवात।